अस्सलाम वालेकुम, चलिए नमस्कार। मैं हूँ आरजे शहनाज, आप सबका फिर से वेलकम करना चाहूँगी हमारे एक मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। आज जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ 3 ऐसे शख्सियत जुड़ रहे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं जो बिलोंग करते हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी रिसर्च टीम इन द आइसरो नाइसर प्रोजेक्ट से, जिन्होंने रिसेंटली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ये सर्वे किया है, तो जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रॉक्स ग्लेशियर्स। तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आप तीनों का हमारे स्टूडियो द्रास 90.4 FM। थैंक यू सो मच। सबसे पहले योर इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर दिस इनविटेशन। मेरा नाम रम्या, मैं बिलोंग करती हूँ केरला से, बट आई एम वर्किंग इन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। लाइक माय रिसर्च एरिया इज़ ग्लेशियर्स इन द हिमालयन ग्लेशियर्स। तो मेरा मास्टर्स से लेके लाइक मोर देन 10 years आई हैव एक्सपीरियंस ऑन हिमालयन ग्लेशियर्स। सो पहले हम लोग सैटेलाइट डेटा यूज़ करते, तो फिर हम लोग को वैलिडेट करने के लिए ग्लेशियर्स पे जाके मेजरमेंट्स ले लेता है, ऐसे करते। तो 10 साल मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा PhD फ्रॉम 3 इंस्टीट्यूशन कैन से। आई बिलोंग टू IAC एंड फ्रॉम IIT धनबाद I have one co-guide. Then I have done my coursework from University of Iceland. Okay. Then I worked in Amrita University. Then I came to Azim Premji. Okay. Thank you. Thank you, Radio Dras, for inviting us. I'm Dr. Manisha Mishra, and I'm also faculty assistant professor at Azim Premji University in Bangalore. And my area of specialization in atmospheric science, but of course, I'm here along with Ramya for this glacier research project. So thank you so much. Mudar. So I'm currently working as a senior researcher at the International Center of Excellence, Indian Institute of Science, Bangalore. So I'm basically from Kashmir, but I'm currently living in Bangalore. And related to my education, I have done my education from Kashmir University to Pondicherry University to NIT Srinagar and from IIC also. So I also work on multi-hazard risk assessments. I'm a geologist, geophysicist, geospatial technologist, and I also work on waters and other environmental factors. So thank you very much for inviting me. Thank you. आप सभी को जो है थैंक यू कहना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम का पार्ट बनने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी माइन इज डॉक्टर रम्या, तो व्हाई डिड यू सेलेक्ट ओनली द्रास फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव यू हैव? First of all, about this project is on permafrost. So like permafrost is nothing but permanently frozen ground. Okay. जो ज़मीन ऊपर रहता है कि सॉइल जैसा, बट नीचे उसका आइस होती है। Okay. तो उसका 2 components है, देयर इज एन एक्टिव लेयर एंड फ्रोजन लेयर। सो यही द्रास एरिया हमको पता चला, द एंटायर लद्दाख एंड स्पेशली द्रास, द coldest, the second coldest inhabited place. So our project is more or less like I should say that this permafrost studies are really under research in the Himalayas, especially in the Indian Himalayas. We don't have data, so we are using this nicer data as a complementary for this purpose. So like we ask with the complementary source, like we are using as the ground measurements. So when we actually thought about the project, then I should say that Ayaz, he is the one helped me, like the where to search, like permafrost. So then we connected with the Dras University and they were so much welcoming us. Then we thought that okay, this is and they also we have actually had some meetings and the landforms they have identified this as a permafrost. तभी हमने सोचा था कि like 3 साल तो चलाना ही है, तो हमको if with the university, then also like Azim Premji is also involved. So we have like Manisha will talk about our mission and vision. Okay. So we thought like we can be here for a long time and we can do our research along with that from the university vision also. So we can support you are in the foothills of Himalayas, so like glaciology is one of the aspect in this. So we thought that we can train some people from here and there are a lot of objectives in that. Of course. Okay, my next question will be Dr. Manisha Mishra ma'am, ki Azim Premji Foundation, can you explain that? Okay, Yes. sure. So basically, Azim Premji we are from university, and university is part of Azim Premji Foundation. So basically, Azim Premji Foundation has a motto, a vision, which is just equitable, humane, and sustainable society. So we work towards that. For APF
basically Azim Premji Foundation, APF also works for community health, and there is philanthropy, there is education, scholarships, so a lot of things, and a lot of things they work on. And university is also part of education, so we are in the university, and I can tell you more about this maybe later. आपको जो है क्यों लगा कि द्रास इम्पोर्टेंट है इस रिसर्च के लिए, तो आपको ये फील कैसे आया? ये फील खाली मुझे नहीं है, बट इन द साइंटिफिक कम्युनिटी आई कॉल इट एज अ बर्थ प्लेस ऑफ हिमालयाज, क्योंकि अगर हम हिमालयाज की बात करेंगे, इट इज़ 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग स्ट्रेच विच हैज़ अ ह्यूज इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस इन आवर एनवायरनमेंट एंड आवर टेक्टोनिक एंड हिमालयन एक्टिविटीज़. तो नॉट ओनली अ बर्थ प्लेस, अगर हम बोलेंगे कि there is something very important with Dras. So one thing is called Indus Future Zone. So जहाँ पे दो बड़ी प्लेट्स टकराई थी, वन यूरेशियन प्लेट और एक इंडियन प्लेट, और हम जहाँ इस स्टेडियम में हम जहाँ बैठे हैं, इट इज जस्ट some tens to hundreds of kilometers जहाँ पे वो प्लेस एक्चुअली लोकेटेड है. So that is why I call it a a birthplace of Himalayas. And second, I also consider it, not only me, many others, it's considered as the national laboratory and as well as the field library, because जिन चीज़ों को दुनिया बनाने में बहुत पैसा खर्च करती है, और I feel I'm very lucky that मैं इस जगह पे बात कर रहा हूँ, which is actually a national laboratory and a field library. So there are many things, and अगर हम बात करेंगे, there are too many जिसको हम राज बोलते हैं इस ज़मीन में, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम हिमालयाज़ की बात करेंगे, ये समंदर ही ऊपर आया है, जो समंदर पर ये if I'll tell you about this, जहाँ प्लेस पे हम पहले बैठे थे, it was a sea, तो उसको बोलते हैं हम टेथी सी. तो उसके बाद जो प्लेट टेक्टोनिक आप जानते होंगे, जो दो प्लेट्स टकरा गए और धीरे धीरे वो समुद्र खत्म हो गया, तो हिमालयाज बन गए. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट सिग्नेचर ऑफ दोज हिमालयाज. एंड करंटली जहाँ पर हम बैठे हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी नो अबाउट दिस, but actually we are staying at the place which has a huge significance across the whole world. So इसकी significance अगर मैं बयान करता रहूँगा, it is going to take me too much. But मैंने बोल दिया, it is a natural laboratory, it is a field library, and it has a very high importance in geology, glaciology, and all earth and atmospheric sciences. Okay, ma'am, we heard the project is founded by ISRO and NASA. Can you just brief about this to our listeners? Sure. Yeah. So this is, of course, like funded by NASA and ISRO. That is what it's called as NISAR. It is like NASA, ISRO, synthetic aperture radar. So synthetic aperture radar is something like in remote sensing and GIS, like we actually use remote sensing data, especially for like the place we are not able to access because we cannot go there. So this was really useful, like from 2000 onwards, like 90s onwards, the Landsat data, it was available. Then again, like we got like, that is an optical data, like the normal pictures, and they have a lot of bands, but we didn't have anything to penetrate in the ground. Like and also optical data, like there is a something like if it is a cloud cover and if it is no cover, and it's a like source of like energy, sun, so day only it's possible. So we have a lot of difficulties, but we were using this data for a long time. But this is one of the mission we were all looking forward, not even cryosphere, the biosphere, and even like hydrosphere and other areas also, they got this project. So they do different applications like the soil properties, then the hydrology aspect and everything. So in the cryosphere, I can say that like the permafrost, like we were looking, because I have already explained, it's actually soil, and underneath we need to know like how much depth, कितना गहरा है, जैसे फ्रोजन ग्राउंड है. तो तभी पता चलता है कि जैसे कैसे उसके बाद क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है आपके जो बहुत एरिया में जो पानी निकल रहा है, तो इट्स लाइक बिकॉज ऑफ मेल्टिंग, मे बी लाइक अंडरनीथ द आइस इज मेल्टिंग बिकॉज ऑफ इन द समर एंड completely frozen hota hai. So that is what like we wanted to look like how much thickness is the layer. So this has two bands. So S band is from ISRO and L band is from NASA. So S band ऊपर का properties देता है, L band penetrate होता है तो नीचे का देता है. So it's a complementary source we are looking for. So that is what especially like I feel that it's useful for permafrost. Then I already mentioned the other part of like science also, it's applicable. Yeah, thank you. Okay, ma'am.
क्या लगता है कि आपको हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगे इन फ्यूचर में? तो जैसा मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में स्टूडेंट्स को देखा, वो जियोलॉजी में काफ़ी बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और अदर सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस भी एक कोर सब्जेक्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो एक फ्यूचर स्कोप जो हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा है उनके लिए, एक एमएससी इन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी है। और क्लाइमेट चेंज से द्रास एक ऐसी जगह है जो एक्चुअली इन फ्यूचर बहुत रिस्क सफ़र कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड जो हमारे यहाँ एमएससी है वो एक जॉब रेडी प्रोग्राम है, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को इतना स्किलफुल बनाता है, बिकॉज it has a like training, hands on training for every courses which they do. तो वो हर वक्त इंटरेक्ट होते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से, एंड उनका सॉल्यूशंस वहाँ उनको समझ में आता है। तो अगर यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और वो एक अच्छे ट्रेनिंग के साथ वापस लौट के द्रास के लिए काम कर सकते हैं। तो मैं सच में आगे देखना चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स आएँ और द्रास के लिए हम काम करें हमारी यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे यहाँ, काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, स्टूडेंट्स हमें हमेशा अप्रोच कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पे जा सकते हैं। तो हमारा ये एक मेन पर्पस है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, थैंक यू मैम। सो सर, व्हाट आर द डिजास्टर कॉजेज एंड consequences in Dras? Can you identify that? हाँ, so this remains a very important question. जैसे डॉक्टर रमिया ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ग्लेशियोलॉजिकल पार्ट। तो इससे पहले मैंने बोला कि दिस इज़ हिमालयाज एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। तो जहाँ पे भी हमारा हिमालयाज है, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थक्वेक्स, अगर हमको पता होगा कि 2005 में हमारा अर्थक्वेक इन द अदर पार्ट ऑफ दिस रीजन आया था, which almost gave us more than 80,000 fatalities. So many died, there were so many sufferings at that time. और क्योंकि ये जुड़ा होता है, जहाँ पे भी हिमालयाज होता है, कन्वर्जेंस होती है, तो अर्थक्वेक्स जुड़े होते हैं उसके साथ। तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थक्वेक। सो वन, देयर आर ऑलवेज द अर्थक्वेक कॉन्सिक्वेंसेस। अब अर्थक्वेक कॉन्सिक्वेंस के साथ अर्थक्वेक बिकम्स आल्सो द ड्राइविंग फोर्स टू मनी अदर कॉन्सिक्वेंसेस। लाइक जैसे मैम बात कर रही थी ग्लेशियर्स की, ऐसा मैं लेमैन में बोल देता हूँ कि एक अर्थक्वेक आ गया और ऊपर ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर का एवलांच आने का भी खतरा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप भी है, तो अर्थक्वेक आएगा तो लैंडस्लाइड होने का भी खतरा है। तो ऐसे ही फ्लड्स, फ्लैश फ्लड, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो जहाँ पे मैंने ये बोला कि नेचुरल लेबॉर्ट्री है, लाइब्रेरी है, बहुत सारी खुश होना चाहिए इस जगह से, मगर वहाँ के साथ साथ हमारे पास क्राइसिस भी है, डिज़ास्टर क्राइसिस, और कॉन्सिक्वेंसेस भी एफिलेटेड इस चीज़ से है। सो उसमें अर्थक्वेक्स, एवलांच, landslides for this region is very common because ये प्लेट बाउंड्री के बिल्कुल नज़दीक है। दूसरा, यहाँ का स्लोप बहुत ज़्यादा है लैंडस्लाइड्स के, एवलांच के लिए। सो ये तीन चीज़ें, आई थिंक वी आर वेरी वल्नरेबल फॉर दिस डिज़ास्टर्स। और जहाँ पे हमारा फिर गुलाफ रिस्क भी बनता है, जैसे मैम जिस पे काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि कॉन्सिक्वेंसेस है, एंड इट इज एफिलिएटेड टू दिस रीजन, एंड फॉर दैट अवेयरनेस एंड हैज टू बी टेकन प्लेस। Okay, ma'am, my next question is to you. What are the basic information जो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जियोलॉजिकल होता क्या है, और उसके बारे में बताइए। हमारे जो है स्टूडेंट्स को अमूमन पता नहीं होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जियोलॉजिकल। जी। So, as I already said, so you are in the foothills, like of the Himalayas, like so for my studies, like I have different projects in different regions. So when I go to every place, मैं बताती हूँ कि आप लोग कर लीजिए अपने लिए, क्योंकि मैं तो केरला से हूँ, तो मेरा जैसे वहाँ से जैसे लाइक जीरो मीन सी लेवल से मैं इतना ऑल्टीट्यूड तक, तो मुझे तो एक्चुअली ट्रेनिंग लिया हुआ है मैं, लाइक मोस्ट मेनी ऑफ द ग्लेशियर्स आफ्टर दैट ली, बट लाइक योर प्लेस, लाइक इफ यू कैन वर्क फॉर योरसेल्फ देन इट विल बी ग्रेट। सो देन अभी बोल रही थी अयास ने बता दिया था कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स का लद्दाख एंटायर लद्दाख में, जैसे लद्दाख बेसिन में ग्लेशियर थिकनेस जैसे 2000 to 2020 1.2 मीटर थिकनेस ऐसे हो रहे हैं, 1.2 मीटर कमी हो रहा है एवरी ईयर। ऐसा नहीं थी कि 20 ईयर्स नहीं है, एवरी ईयर। सो मानो, एंड मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स आपको पता है कि ले लद्दाख एरिया जैसे ऊपर के एरिया में जस्ट इट्स वानिशिंग। सो यू आर like source of water is glacier. So because you don't have much precipitations here, so if the glaciers are vanishing, suppose what will happen? So the water availability,
So then the second thing is like, the hazards. So like there are actually after the glacier vanished, there are a lot of glacial lakes are forming there. So there is a chance of like, when the glacial lake expands, this if the bounded like, boundary is not so stable, then it can have a chance of glacial lake outburst flood. Okay. So then again, like, the glaciers and the rock glaciers, that is mountain permafrost, that is also one of the study like we are doing. वो तो हाई स्लोप में होता है, तो हमने कितना भी इन्वेंट्री देखा है तो 60 से ऊपर स्लोप ही होता है. देखो मानो कि कुछ भी ट्रिगर लाइक ज़्यादा भी क्लाउड बर्स्ट और कुछ भी अदर ट्रिगर्स, तो इसी को लाइक देन इट विल बी लाइक ए डेब्री फ्लो. सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट चमोली डिसास्टर एंड लाइक उत्तराखंड में होता है, तो तभी यहाँ पे भी हो सकता है. तो हम चाहते थे कि आप लोग लाइक जियोलॉजी है दास में, तो उसके बाद ग्लेशियर्स में स्पेशलाइज कर लो, तो फिर आके लाइक अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर लो. एंड वी हैव गिवन लाइक वी वेंट टू द ग्लेशियर, लासल्ला ग्लेशियर. तो अभी हमने 3 स्टूडेंट्स को लेके गए थे एंड माय एक्सपीरियंस इज रियली गुड. लाइक दे आर एबल टू वॉक, दे आर एबल, चढ़ जाते हैं अच्छे से. तो ऐसे ट्रेनिंग की बहुत जरूरी नहीं है, वो लोग को पता है कि क्या खतरा है, कैसे चलना है, ये सब. इनफैक्ट लाइक दे हेल्प्ड अस. सो मैम को तो बहुत हेल्प किया है वो लोग. तो ऐसे देखो कि लाइक ये this is a beautiful place, like the paradise, like so like you should save this. So like अपने जगह पे like बचाने के लिए अपने लोग ज्यादा ऐसे ना जिम्मेदारी होती है. तो इसलिए बोलते थे कि like students can we will give all support because Manisha was mentioning about our program. So आके यहाँ से निकलो. आपके प्रिंसिपल भी बोल रहे थे कि आपको बहुत कुछ रिजर्वेशन दिया है, सब कुछ दिया है, आप निकलो द्रास से, फिर वापस आओ, अपने लिए काम कर लो. बिल्कुल, डेफिनेटली, दैट्स करेक्ट. मनीषा मैम, first time when you went to government degree college and interaction with students, how was your experience? It was really wonderful experience and students were really enthusiastic. बड़ा अच्छा लगा जान के कि वो आगे भी करना चाहते हैं. कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां उनको पता है, और वो मोटिवेटेड लगे कि वो और ट्रेनिंग जैसा लेना चाहते हैं इस फील्ड में. और स्टूडेंट्स आपके यहाँ ये अच्छा लगा कि जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इन सब में काफ़ी अच्छे नंबर में हैं स्टूडेंट्स. तो कहीं ना कहीं ये देख के अच्छा लगा कि वो बहुत मोटिवेटेड हैं और आगे भी पढ़ना चाहते हैं, आगे काम करना चाहते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए. तो मैं होपफुल हूँ कि वो ऐसे पढ़ते रहेंगे और बेटर करेंगे इस जगह के लिए. ओके सर, अयास महमूद सर, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, ये जैसे कि हमारे द्रास के अगर बच्चों की बात करें तो आपको कैसा लगा कि रिसर्च के इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो द्रास के जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं कि आगे आने वाले कल में वो लोग कितना अपना ट्रेन बेस दे सकते हैं? The most important question for me. Definitely. Because this is related to the students. और इसमें मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा. So one about the both pro and cons. तो एक जगह पता है, अगर हम द्रास की बात करेंगे, दिस इज अ रिमोट प्लेस. और एक कॉमन एक परसेप्शन है हमारा कि रिमोट प्लेस में जो बच्चे होते हैं, दे कीप दे आर डिस्टेंस फ्रॉम द अदर फैसिलिटीज, कम्युनिकेशंस. बहुत सारी कम्युनिकेशन गैप होती है. इफ यू गो टू द सिटीज, बाकी चीज़ें वी हैव बेंगलोर, वी हैव मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, सो मेनी प्लेसेस इन इंडिया. और अगर हम द्रास की बात करेंगे, दिस इज सम काइंड ऑफ फार फ्लंग प्लेस. तो ये थोड़ा आउटरीच कम होता है स्टूडेंट्स का. और मगर जो आपने दूसरी बात बोली कि आपने बोला कि द्रास के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, आई थिंक दे कैन डू बेटर. Because I have interacted with many of the students from Dras, Kargil. जैसे मैम ने बोला कि हमारे साथ 3 बच्चे आए थे. I found them very interesting. वो कैसे क्लाइंब ट्रैक कर रहे थे और कैसे सवाल पूछ रहे थे, ग्लेशियर्स को देख रहे थे. तो इसका मतलब है, तब जब मैं ये चीजें देखता हूँ तब मैं ये मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स बेटर कर सकते हैं. मगर एक ही चीज की कमी है कि मे बी अ कम्युनिकेशन गैप इज देयर. तो आई थिंक that generalization is very important and it is very common for far-flung areas. तो you must be knowing about this. ये common चीज है far-flung जो students रहते हैं. But what I personally believe is that the students who live in far-flung places like Dras, they are more energetic, they are more talented, and they are more enthusiastic about learning things. तो मुझे लगता है कि खाली जनरलाइजेशन करने की जरूरत है. और जो आपका सवाल था कि कर सकते हैं, आई थिंक दे कैन डू वंडर्स. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन यू टॉक अबाउट द रिसर्च एंड environmental sciences, I already said about it. This is a natural laboratory, this is a library. और लोग लाखों करोड़ों खर्च करते हैं और यहाँ जैसे हम आए हैं
हम भी तो साउथ इंडिया से बहुत सारा पैसा खर्च करके आए, प्रोजेक्ट फंड मिला है, फिर ट्रैवल करना पड़ा, इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज, हम द्रास कॉलेज में बोले थे वी यूज जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट्स आर वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज। तो वो सारा करके हम द्रास में आके आपसे मिल रहे हैं। बट नाउ इमेजिन द स्टूडेंट जो द्रास के ही है और ये काम कर रहे हैं, हाउ मच बेनिफिशियल दे विल बी। सो आई थिंक वी ओनली नीड टू चैनलाइज देम और थोड़ा अवेयरनेस करने। आई एम प्रीटी श्योर दैट द कॉलेज वी हैव प्रिंसिपल इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी एनर्जेटिक, और वो बहुत काम कर रहा है। वी फाउंड हिम वेरी एनर्जेटिक, जैसे वो हमें भी मोटिवेट कर रहा था उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि वो काम करेंगे और यहाँ में भी बेहतरी आएगी, चैनलाइजेशन हो जाए और स्टूडेंट्स विल शाइन। आई एम होपफुल। मैम, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है इस फील्ड में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं? एडमिशन्स के लिए बेसिकली हम यूजुअली अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशन जो होती है कहीं ना कहीं आपको नवंबर दिसंबर के अराउंड आ जाती है। वो वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। कोई भी उन्हें क्वेश्चंस हो तो हमारा एक ईमेल आईडी भी है info.scs@apu.edu करके आप वो उस पर जा सकते हैं। तो वहाँ पे उन्हें अप्लाई करना है, थोड़ा सा उनको प्रिपरेशन करनी होगी। हमने एक डिटेल सिलेबस दिया हुआ है कि क्योंकि इंटरव्यू होते हैं वो थोड़ी सी उसमें स्क्रूटनी होती है, तो वो एक उसकी प्रिपरेशन करें कि क्या पूछा जाएगा। कुछ स्टैट्स होती हैं, कभी जियोलॉजी की जो जिस भी चीज़ में उन्होंने मास्टर्स की उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए वो प्रिपेयर्ड रहे। फिर वो एक आसान प्रोसेस उनके लिए हो जाएगा और इंटरव्यू होके और वो स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वो वहाँ पे आराम से आ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रेमिया मैम, आपके लिए क्वेश्चन है कि द्रास में देखा जाए तो काफ़ी क्लाइमेट चेंजेस हम देख रहे हैं। पहले 90s की अगर बात करें, स्नोफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी एज ए कंपैरिजन टू अभी यहाँ पे शॉर्टेज है स्नोफॉल की। अगर रेनफॉल की अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंजेस के बारे में आप बताइए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, लोगों को अपने क्लाइमेट इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है। एज ए मैसेज हमारे लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? सो आज आप बोल रहे सही है। जो 90s में हम लोग मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे पापा मम्मी लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में जैसे सुना है। तो हम लोग भी देखो कि जैसे हम लोग, जैसे मैंने भी, जैसे मास्टर्स तक मुझे नहीं पता था कि क्लाइमेट चेंज क्या है। तो इसी फील्ड में काम करके जैसे क्लाइमेट चेंज बोलने का ईजी है। जैसे क्लाइमेट चेंज मतलब लाइक 10 साल की चेंजेस अगले 10 साल में हम लोग दिख रहा है ना। तो 90s में क्या होता है कि हमारे इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होते थे, सेलफोन नहीं होते थे, फोन भी नहीं होते थे, लोग इतनी ट्रैवल भी नहीं करते थे, क्योंकि जैसे सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया तो तभी भी जैसे इतना नहीं होते थे, जैसे इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं होते थे। तो क्या है कि जैसे कार्बन एमिशन, तो मनीषा जो क्या काम करती है उसी में है, तो ज़्यादा वो नहीं होते थे। तो स्काई क्लियर होते थे, तो मानसून नॉर्मल थे, स्नोफॉल नॉर्मल थे। आपके यहाँ पे, हमारे केरला में भी बहुत हो रही है, मानसून की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे भी सब जगह पे होती है। बट यहाँ पे आपकी पेक्यूलियरली हिमालय में क्या हो रही है, अभी जैसे नॉर्मली लाइक इन नॉर्थ इंडिया में ड्राउट होती है, तो आपकी जगह पे स्नो ड्राउट होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्नो इज नॉट फॉलिंग इन ए प्रॉपर सीजन। सो 2023 में आपकी गुलमर्ग पहलगाम में क्या हुआ था कि दे सेट अप एवरीथिंग। सो क्या होगी, 1 month डिले हो गया स्नोफॉल। द टूरिज्म इज फेसिंग लॉट ऑफ थिंग। सो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज द आफ्टर इफेक्ट इन द अदर इंडस्ट्री, सो लाइक देर आर लॉट ऑफ रिस्क इन एवरीथिंग, लाइक दैट इज बिकॉज ऑफ वी आर क्रिएटिंग आवर ओन वर्ल्ड, लाइक डर्टी। एंड हमने जो ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं, तो हमने उसी टाइम भी देखे कि वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है। तो जैसे आप लोग को बच्चे को लेके गए, तो वो लोग को जैसे प्रॉपर जानकारी भी नहीं दे पा रहे कि वो लोग को पूछा था कि अरे ग्लेशियर खत्म हुए तो आप लोग क्या करते हैं। अरे मैम ऐसा है क्या, ग्लेशियर से ही हमको पानी मिलता है? तो मैंने सोचा था कि आप ग्लेशियर यहाँ पे रहते हैं। तो जैसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्कूल, एटलीस्ट लाइक इन द माउंटेनियस रीजन, फ्रॉम द स्कूल, इफ यू हैव समथिंग अबाउट लाइक बेसिक क्लाइमेट चेंज, लाइक इफ यू आर ए ग्लेशियर्स एरिया, लाइक ग्लेशियर्स क्या होता है, छोटे छोटे चीजें, तो ऐसे लाइक ऐसे दिस अवेयरनेस बता सकते हैं। एंड लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक द स्वच्छ भारत, ये सब लाइक वेस्ट डिस्पोजल करके। बट प्रॉब्लम है कि हम लोग प्रॉपर यूज कर रहे हैं, ये सब प्रॉपर लाइक यूटिलाइज कर रहे हैं। एवरी हाउस प्रॉपरली एजुकेटेड कर रहे हैं। तो एवरी मम्मी तो लंच पैक दे रहे हैं, तो उसके साथ बेटा ये भी ले लो, अपनी जैसे वेस्ट बैग लेके आओ, एक बास्केट दे देना। तो ये सब आप लाइक प्रॉपरली ट्रेन किए तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर, बचा नहीं सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रहा है, तो दिस इज इंटरग्लेशियर साइकिल, सो ग्लेशियर विल रिसीड, बट द अलार्मिंग रेट ऑफ ग्लेशियर्स,
So there are a lot of predictions. So like the worst condition in the Himalayas they have predicted 2090 में 70% glaciers vanished है, and the first outcome is happening in Ladakh. You are reaching. Seriously. So like I'm literally worried about it, and I conclude with the thankful sentence like, so we are here, so we are leaving tomorrow, so we had good facility, good hospitality from Government College of Dras, especially principal sir. He was very supportive, like he always like travel from Kargil, and yesterday he stayed back for us. Then he did all, like I have said, like he did all from the starting. We started from there, we had online meetings, phone conversation, everything. He literally like welcomed us and did all the facilities for us. And from the like trekking, like we can say that we did a good trekking in the Lazala glacier. It's a beautiful glacier. So then we have taken, so I would like to thank everybody in the field, like our collaborators. घोड़े को लेके आए हैं, लेबर्स है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट थे, तो हम लोग वो सब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बट इट वाज सक्सेसफुल. वी कुड गेट द डेटा फ्रॉम देयर. देन वी केम बैक एंड भालू भी देखा है हमने. सो लाइक वन बच गया हमने थोड़ा वापस. ये लोग बोल रहे थे, बच्चे लोग को सब पता है कहाँ खतरा है सब, तो ये लोग बोल ही रहे थे कि मैम थोड़ा सा धीरे जाइए. तो हमने 8 बजे निकले थे, तो 8:30 को भालू भी देखा है, तो वो हमने फिर वापस आके कुछ नहीं किया है, तो वी ऑल सेफ. सो वी आर लिविंग टुमारो. सो वी वुड लाइक टू conclude the thanks with you also, like our news is actually like what we have done. So like the radio, like we are so thankful to you people that message communicator. So this is encouragement for all researchers to come here and do work, and this is a great place. थैंक यू वेरी मच. तो ये थे हमारे साथ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के कुछ स्कॉलर्स जिन्होंने इन्फॉर्मेटिव मैसेज आप लोगों तक पहुंचाए, खासतौर पर क्लाइमेट चेंजेस, यहाँ पे मेल्टिंग ग्लेशियर्स और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग. और उन्होंने ये बात भी रखी कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर जो है कितने ज़्यादा टैलेंट्स होते हैं, बट टैलेंट्स के लिए उनको एक प्रॉपर गाइडेंस और हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटी और काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है. तो माय डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट है आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा पसंद आया होगा. इस तरह के पॉडकास्ट और मेरे प्रोग्राम को खुसूसी देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना. फिर मिलती हूँ एक नए प्रोग्राम और नए पॉडकास्ट के साथ. यहाँ पे इजाजत लेना चाहूंगी. अल्लाह हाफिज. हमेशा फ्रेश, हर दिन, हर शाम, हर रात. You are listening to Radio Ras 90.4 FM.